الرحمن الرحیم اکتوبر 2019 میں اس وقت ملیشیا میں ہوں. آج ہی ہم صبح پہنچے ہیں اور ماشاءاللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی محنتیں دیکھ کے ایمان تازہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں سے بڑا کام لیا ہے. یہ سارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ شخصیت ہیں جو بابری مسجد کو توڑنے میں سب سے آگے تھے اور سب سے پہلا کدال جو بابری مسجد پہ چلایا تھا انہوں نے چلایا ہے. اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے بہت زیادہ یعنی بے حرمتی کی تھی، لیکن آج اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا ہے. اور ماشاءاللہ اب آپ ان کا حلیہ دیکھیں. اور انہوں نے اس کفارے کے طور پر کہ میں نے بابری مسجد کو شہید کرنے میں میرا کردار تھا تو میں اس کا کفارہ یہ کہ میں 100 مسجدیں ہندوستان میں بناؤں گا. تو تھوڑا سا ان سے انٹرویو لیتے ہیں ہم. ایسے کئی غیر مسلموں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جو بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دین کی دعوت پر وہ لبیک کہی، انہوں نے لبیک کہا اور الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے. تو آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں گے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ محمد عامر میرا نام ہے. محمد عامر. جی. سابق نام بلبیر. بلبیر، انڈیا میں بلبیر سے. اچھا. تو پانی پت ہریانہ سے. پانی پت ہریانہ سے. تو پہلے اسلام سے اتنی دشمنی آپ کی، اس کی وجہ اور پھر ایک دم اسلام میں داخل ہو جانا، یہ دو ایک دم یو ٹرن آپ نے لیا، اس کی کوئی تھوڑی سی کارگزاری سنائیں گے آپ؟ پہلے آپ کس مذہب میں تھے؟ جی پہلے میں ہندو میتھولوجی جس کو کہہ سکتے ہیں، ہندو دھرم تو نہیں ہو سکتا. یہ دھرم اور میتھولوجی میں کیا فرق ہے؟ دھرم ہوتا ہے جس کا آخرت پر پکا یقین ہو. اچھا. پرلوک کی دنیا جس کو ہندی میں کہتے ہیں. میتھولوجی ہوتا ہے جس کا کوئی سدھانت نہ، سپریم کورٹ آف انڈیا میں سدھانت مطلب اس کا قانون، اس کو قوانین. اصل میں ہندی میں مجھے بات اصل میں 1976 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک کتاب پر فیصلہ دیا تھا کہ زین دھرم، بودھ دھرم، ہندو دھرم کوئی دھرم نہیں ہے، کیونکہ مرنے کی بعد کی زندگی کا تصور اس میں نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کچھ فنا ہے. تو سناتن دھرم جو ہے پرانا کئی موت و دھرم، تو برحال ہندو کھاتے میں وہ ہندو لکھ دیا گیا کہلاتا. ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو بھی مسجدیں دیکھ رہے ہیں یہ مندروں کو توڑ کے بنائی گئی. اچھا، یعنی آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ جتنی انڈیا میں مسجدیں ہیں یہ اصل میں پہلے مندر تھے جن کو توڑ کے مسجدیں بنائی گئی، اور گائے کا سر کاٹ کر اس کی بنیاد رہی. اچھا. اب اس کے ساتھ اس کی آستھائیں جوڑی گئی، اس کے ساتھ اس کے جو ہے تھوڑا اگر قریب آ جائیں ایسا آواز پہنچنے میں. گائے ماتا سے جوڑی گئی، اس کے عقیدت مندروں سے جوڑی گئی. وہ عقیدہ جوڑ کر کے پھر دوسرا مسلمانوں سے دوری کی گئی، اسلام اور مسلمانوں سے. اور 1947 کے بعد تو ایک جملہ عام ہو گیا تھا، جب بھی کوئی آدمی الٹا سیدھا کام کرتا تھا اس کو کہتے تو مسلمانوں کی طرح کام کرتا ہے. اچھا. مطلب میرے گھر میں اب بچپن سے میں 2 جنوں بیٹھتا تھا. اچھا. تو سب چیزیں ٹھیک تھی. ہماری والدہ مسلمان توحید پرست تھی. اچھا. آپ کی والدہ ہندو ہو کے بھی توحید پرست تھی؟ کیونکہ وہ ستسنگ مشن وغیرہ سے جڑا ہوا تھا. تو وہ ایک مالک کی بات کرتی تھی، چوتوں کی خلافت کرتی تھی. لیکن یہ کہتے تھے ملوں کی طرح کیوں بیٹھتا ہے. اچھا. وہ آپ جب دوزانوں بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے ملاؤں کی طرح کیوں بیٹھتا ہے؟ ہاں، مسلمانوں کی طرح کیوں بیٹھتا ہے. جیسے ہاتھ دھوتے وقت وہ نل چل گئے تھے، جب پہلی بار نل لگے تھے ہمارے گھر، پہلے ہینڈ پمپ ہی تھے تو 2 ہاتھ ایسے میں کر کے دھوتا تھا. اچھا. ہاتھ دھونے میں ایسا ہی اکثر ہوتا ہے نا، میں آدمی انجان تو کہتے ہیں مسلمانوں کی طرح ہاتھ بھی دھوتا ہے. اچھا. تو کچھ کہتے تھے کہ جو کچھ کام کرا جب کھانے پانی پینے کے لیے گلاس وزن دار ہوتا ہمارا بڑا ہوا دودھ پیتے دوسرا ہاتھ لگا دے کہ مسلمانوں کی طرح کیوں پیتا تو ہاتھ لگا. ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کیوں کرتے تھے مسلمانوں کی طرح یہ کام؟ فطری چیزیں ہیں یہ. اب ایک صحیح طریقہ ہے تو فطری ہوتا ہے. یعنی آپ اس لیے کرتے تھے بھائی صحیح طریقہ ہے تو جہاں سے بھی ملے لے لے انسان. وہ میں نے کہیں سے دیکھا نہیں، بس آٹومیٹک ہوتا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی کام مسلمانوں کے طریقے کیا جائے تو اس کو اتنا زیادہ مایوب سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان کرتے ہیں اس کام کو، تم کیوں کرتے ہو؟ اچھا. مسلمان گویا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مسلمان اچھے نہیں.
तो एक दहशत बिठाई गई कि इन लोगों ने हमारा राजपाट छीना, हमारे मंदिरों को तोड़ा, गायों को काटा, यानी कि एक तरह की असलियत जो है पैदा की गई थी। उस असलियत का नतीजा यह था कि मुसलमानों के नाम पे चिड़े हुए थे। हम तो ये कहते थे ये अकबर बादशाह को पढ़ाया जाता। एक दूसरी चीज ये थी कि जब नंबर कमाते थे हिस्ट्री में कि यार मुसलमानों की इनकी उनके बाप दादाओं को याद रखो, उनके पैदाइश को याद रखो, बड़ा एक प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। और एक जुमला आता है यार मुसलमान अपना तो बच्चे पैदा कर गए कई, लेकिन हमारे जब खाते बन गए, तो वो इस तरह से करके मजाक से लेकर के हर चीज मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। वो असलियत इस कदर बढ़ गई। और वो 18 का जो दौर था, 80 का वो 80 का दशक का दहा था कि जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो है ना तहरीक ज़्यादा गर्म की गई सियासत, इससे पहले कहीं कागजात में थी। उस दौर में हम लोगों को एक मुद्दा मिल गया। देखिए मैं अगर थोड़ी बहुत सियासी बात रहे तो हिंदुस्तान के लोग सियासत जुमलों से पक गए थे, कब गरीबी हटेगी, कब क्या होगा। लेकिन ये नया मुद्दा था, आम आदमी को लेना नहीं देना नहीं, अब बस आ गई राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए जो भी कुछ बातें आई तो वो सारी चीजें बन गई। उसमें हम लोग जब उतरे तो उन लोगों ने कहा ये सही लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। नेताओं को जूते मारने लगे थे लोग। इससे पहले नेताओं से डरते थे। 80 के दौर में नेता क्या होता है? ये जो सियासी कायद को वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते थे, उनके खिलाफ बोलने लगे थे। जब चीफ मिनिस्टर उसके खिलाफ में जूता फेंक के मारने लगे थे। अब ये जो दौर आया उस मीटिंग के दौर में, जब सियासी कायदीन भी इसके तरफ रुझू होने लगे इस मुद्दे पर, हम लोग काम करते थे। अब उस वक्त देखिए आडवाणी जी की क्या सियासी हैसियत थी या दूसरे लोगों की आई हैसियत बनी, तो ये एक मुद्दे से बनी। दूसरी चीज हमारे यहाँ आते थे तो ये जो दरी बैठती टाट बैठी होती उस पर 4 लोग नहीं होते थे, उसके ऊपर एक दरी पर बैठे 3 लोग जमा होते थे। एक बार कहा था 4 कोनों पे आदमी नहीं है हमारे पास, हम करेंगे कैसे? भीड़ जमा नहीं होती थी। आखिर इस मुद्दे ने बहुत गर्माहट आई। और उसके बाद हिंदू आवाम की तरफ से कोई इतनी दुश्मनी नहीं थी, वो लोग कोई इतना ज्यादा साथ नहीं दे रहे थे। ये सरकारी सतह पे कुछ हुआ था काम। देखिए वो एक अलग इशू है, इस पर फैसला आना बाकी है। मुझे नोटिस भी जो होगा, मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करूँगा। वो उस पर वो होगा। कानून का एहतराम करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, हकीकत ये भी है, ये बिल्कुल हकीकत है, हिंदुस्तान के लोगों को ये भी नहीं पता था कि राम कहाँ पैदा हुए। हिंदुस्तान के लोगों को हकीकत में नहीं पता था। इस मुद्दे के जरिए याद आ गई, पैदा हुए या नहीं हुए या जो भी तरह जो भी मामले हैं वो। लेकिन इतना कि मुसलमान मेरे इस्लाम को करने का जो मामला है, मैं मुसलमानों के खिलाफ सोचता था, बोलता था, फिर अमल में भी लाने लगा था। जब ये बातें आई तो इसी वजह से मुसलमानों की असलियत में मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा था, जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ। और वो सारी चीज़ें आने के बाद हम लोग उस मामले से जुड़े, और उस मामले के बाद जो है बाकी के यूट्यूब पर मैंने पुलिस डाली है। ये हकीकत ये थी कि मुसलमानों की दुश्मनी से शुरू करे या मुसलमानों की मोहब्बत। चले फिर ये अजान हो रही है, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर बल के मैंने ताकत। जी अच्छा, तो सलतन अब क्या नाम है? अब मैं मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर, सही सही सही। असल में कई बार हमारे यहाँ कहावत होती है ना, जी किसी को तो दुल्हन मिल जाती है घर बैठे, जी, किसी को घूमना पड़ता है काफी लंबा, किसी को कुछ और मुजाहिदे करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अल्लाह ने मुझे जो है थोड़े दिन के जी। लिए नीम पागल कहूंगा मैं अपने आप को। अच्छा। क्योंकि मैं तो अपने आप को पागल नहीं कहता था ना, मैं तो समझता था। हाँ, लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया। अच्छा। मैं पहले सोचता था पहले लेंगे बाबरी फिर इनके दिन यहाँ आखिरी, ये जुमला आपने सुना क्या होगा। क्या? पहले लेंगे बाबरी फिर इनके दिन यहाँ आखिरी, फिर इनके दिन आखिरी, यानी मुसलमानों। बाबरी मस्जिद को पहले हटाएंगे फिर मुल्लाओं को यहाँ से साफ करेंगे। नहीं बात। जैसे 47 में हुआ था, इस तरह की बातें अजाइम। अच्छा और ये अच्छा नारे भी लगाए, बाकायदा स्टेजों पर लगे थे नारे। अच्छा। और 6 दिसंबर की वो मनोज सुबह जब अडवाणी जी वहाँ पे, क्योंकि रिश्तेदार है मेरे, तो अडवाणी जी बोलूंगा मैं तो। एडवाणी आपके रिश्तेदार हैं? मैं रिश्ता ही है उनसे। अच्छा। 3 रिश्ते उनसे हैं। अच्छा अच्छा उनका रिश्ता है उनसे, हमारे आदम सलाम की औलादों में से हैं।
अच्छा अच्छा हमारे अच्छा नबी की उम्मत नहीं है, किसी और नबी की तो उम्मत नहीं है। हमारे अच्छा अच्छा, अल्लाह मैं के तो बंदे डर गया हैं। था, मैंने कहा उनके रिश्तेदार है, मैं तो निकल और रहा एक हूँ और भाई भी से। रिश्ता है भाई, उनकी एक भतीजी भी हमारे दोस्त की बीवी बनी हुई है, तो भाई हमारा एक भाभी भी अच्छा अच्छा उनकी अच्छा है। अच्छा, सही है, भाभी हुई फिर आपकी। और साथ ही साथ वो इतने प्यारे आदमी हैं, एडवाणी बहुत प्यारे आदमी। उनसे जब दीन की दावत की बात करो वो प्यार से सुनते हैं। अच्छा, जबरदस्त। हमारे एक मोहतरम है बिहार के, तो मौलाना बार बार उसका जिक्र करते हैं, मौलाना मुश्ताक साहब, जी मदरसा बोर्ड से साहब पास किया था उन्होंने। वो जब दर्स व तदरीस का काम नहीं कर पाए क्योंकि उनकी उर्दू भी सही लिखना नहीं होता था उनसे, तो हजरत ने उनको तामीरी काम में लगाया। तो लुधियाना में गए थे एक प्रोग्राम में, वो तामीरी काम से, वहाँ पे जलसा हो रहा था डीजीपी का, तो उन्होंने कहा एक मुस्लिम कायद भी चाहिए था स्टेज पे, तो बड़े भारी भरकम थे, तो मदरसे वालों ने उनको आगे कर दिया, बाकी कम उम्र थे। तो वहाँ से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद उन्होंने बैठते ही, अब जो भी हजरत की तहरीक से जुड़ता है, कोई भी किसी काम में काम करता है, अब जो शख्स दर्स व तदरीस नहीं कर सकता, बच्चों को पढ़ा नहीं सका, उस शख्स को जब तामीरी काम में लगाया, लेकिन दावत का उनका मिजाज देखे कि अडवाणी जी से बैठते ही जैसे उन्होंने कारगुजारी सुनाई कि चचा कलमा पढ़ लो, इसके बगैर जो है ना आखिरत में बर्बाद हो जाएगी। अच्छा कुछ उस रहनुमान से बात शुरू की और अडवाणी जी का नंबर आया, तो उन लोगों ने कहा कि स्टेज वालों ने कि भाई आपका नंबर आ रहा है, आप बात कीजिए, आपको आगे भी जाना है। नहीं 2 मिनट ठहरो, किसी और से बात कराओ, मैं भी बात कर रहा हूँ। इससे करके 5-10 मिनट गुजारे और आखिरी में अपना विजिटिंग कार्ड पे साइन करके मौलाना मुश्ताक साहब को दिया। फिर वो दिल्ली आए, मुलाकात की और उनको दावत दी और प्यार से अंदर लेके गए। तो बड़ी एक दिलचस्प कारगुजारी उनकी है। मैं भी उनसे मिलता रहा हूँ। ये शख्स देखिए, कड़वा कितना भी बोलता हो, लेकिन आदमी झूठा नहीं था। कौन? एडवाणी? अडवाणी। अच्छा। बारे में मेरी अपनी राय है। अच्छा अच्छा ये शख्स झूठ नहीं बोलता, जो बोलना सांप को भी फर्क बात करता था। अच्छा अच्छा दूसरे लोगों का नाम लिए बगैर बोलूं तो अच्छा है, बाकी लोगों में सच्चाई नहीं थी। अकेला ये बंदा है जो मेरे करीब जो कायद था उस जमीन का, जिसमें एक सच्चाई थी। अच्छा चाहे वो कितनी कड़वे अंदाज में बोलता, लेकिन सच्चा बोलता। अच्छा दूसरी चीज ये थी कि असल मैं अपने मौजू पर हूँ, तो मैं बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन जब ये एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, इस जुमले के साथ ढोलकबाजी के साथ डांस करते हुए कुछ आदमियाँ सब कुछ कर रही थी, उस वक्त आडवाणी जी के सामने जो हमने जो मंजर देखा जो उस दौर का, उस वक्त जहन में ये आ रहा था कि पहले ये मुसलमान मुट्ठी भर मुसलमान हैं, इनको यूं मसल देंगे। अच्छा 47 में जो बच गए थे ना, अब इनका सफाया तय है। अच्छा 1947 में अच्छा जो बच गए थे, जी। इनका सफाया तय करो, इनके साफ किए बगैर कोई, यानी कि हमारे देश की तरक्की ही नहीं हो सकती। अच्छा ये बदनुमा दाग है हमारे देश के नाम पे, और हम रोज इनकी ज़ियारत देखना पड़ता है उनको। अच्छा 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 मैं इसको बर्दाश्त करना पड़ता गोया के। तो ये एहसास दिल में लेके जो शख्स काम कर रहा हो, फिर उसकी रूह ऐसे काम जाए, छोटी सी दाढ़ी जिससे सुबह हो, ये अनजान चेहरा है, हर मुसलमान दाढ़ी रखता, टोपी नहीं पहनता, ये भी मुसलमान हो सकता है। थोड़ा सा पैंट ऊंची होगी, पाजामा ऊंचा हो, ये भी मुसलमान हो सकता है। उसके नाम की जो डर और दहशत बैठी, ये मुसलमान बड़े जिहादी फसादी होते, ये तुझे मारेंगे। ये अच्छा, आपके दिल में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद एक खौफ बैठ गया जी जी कि ये कोई भी मुसलमान उठ के मार सकता है आपको? क्योंकि मुझे ये था ना, हम जैसे बोलते थे ये बड़े जिहादी होते हैं, अच्छा। बदला लेते हैं, इन लोगों में तमीज नहीं होती, ये अच्छा, किसी भी बात को कहीं भी ऐसा करेंगे। तो ये जो दिमाग में जो वहम हम जो बोलते थे लोगों को डराने के लिए, वो डर उल्टा दिमाग में जो अच्छा, बैठा। यानी आपको पता था आप गलत बोलते हैं, कि मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये यूं है, लेकिन वही चीज आपके दिमाग में बैठ गई फिर? जी जी कि अच्छा। ये बात तो थी कि ये मुसलमान जिहाद कर सकते हैं इस नाम पे, इस नाम पे कोई फतवा जारी कर सकते हैं, और हमारे फोटो खींचे हुए लोगों को तस्वीर डिस्ट्रीब्यूट करा के वो लोगों के बीच में कहेंगे फला शख्स को मार दो, इनाम रखेंगे, ऐसे चंद बातें दिमाग अच्छा में अच्छा अच्छा थी। फिर? जिसके नतीजे में दिमाग में 24 घंटे वही सवार रहता है, मुसलमान आएंगे मारेंगे। ख्वाबों में ख्यालों में भी वही था। अच्छा दिसंबर का महीना देखिए मुफ्ती साहब, 10 दिसंबर को मैं अपने घर में पहुंचा, अपने वतन। 6 दिसंबर को हादसा हुआ, 1-1.5 दिन कभी यहाँ रास्ते में रुकते हुए। हाँ 10 दिसंबर की रात को अपने घर पहुंचा। वहां पर आलम ये है, टेंशन के मारे, दहशत के मारे सो रहे थे, तो पीछे लोग दौड़ रहे हैं, वो गया बलबीर सिंह, मारो इसको, औरतें तक हाथ में खाप की तो ताबीर देखी। ख्वाबों में आता था ये? ख्वाबों में आता था, और इसको मारो। भागते हुए मेरे पसीने छूटते थे। वो दिसंबर का महीना, जाड़े कड़कड़ाती सर्दी बैठती है,
یعنی آپ کو خواب میں آتا تھا کوئی عورت چاقو لے کے آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور بول رہی ہے اس کو مارو, اس کو پکڑو, عورتیں تک مارنے کا جو وہ کرتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا جو ٹینشن کے مارے خواب میں اتنا ڈر جاتا تھا, یہ اللہ کی طرف سے تھا, دھڑکن بڑھ جاتی تھی, پسینہ چھوٹتا. تو وہ جو کیفیت میرے سمجھ میں تو آتی ہے, سمجھانا مشکل ہے. یہ باقیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا اب تک خواب میں نا؟ بس میری جانکاری میں تو یہ ہے کہ اچھا, کافی جگہ کی میرے پاس تو جانکاریاں ہیں مسند کہ بھئی فلاں جگہ کے 4 لوگ ہیں, سیم چیزیں ہو رہی. دیکھیے دنیا میں الگ ہے. چھپرا ضلع بہار کا ایک ڈسٹرکٹ ہے چھپرا, ہاں, وہاں 4 لوگ ہیں, چاروں کے ساتھ ایک جیسے سمٹمس ہیں. اچھا, میں گیا تھا, وہ بھی بابری مسجد میں تھے؟ جی جی, چاروں پاگل ہیں, روڈوں پہ گھومتے ہیں. میں جب گیا 2013 میں, جی, ہمارے ایک حکیم جمال صاحب وہاں کے ذمہ دار, انہوں نے ایک پروگرام کرایا تھا. تو وہ چاروں جب تک زندہ حیات تھے 2013 تک. اچھا, 93 سے 13 تک کافی عرصہ گزر جاتا ہے. جی, جب تک تو حیات ہے, اس کے بعد کا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈسٹرکٹ کانپور یوپی میں تمبور ایک قصبہ ہے, وہاں کے سیم 4 لوگ گئے, چاروں کی ایک ہی انداز سے موت ہوئی. اچھا, اور اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں مفتی خبیر ندوی صاحب ہیں وہاں کے, اچھا, ان کے لائبریری چلاتے ہیں, ان سے پوچھئے چاروں کی موت جسم سے بدبودار خون نکلتا تھا, وہ پھوڑے پھنسیاں نکلے, بدبو ہوئی, اور چاروں ایک ہی وقت میں ان کے ساتھ ایک ہی بیماری آئی. اچھا, اور چاروں کا دیکھیے, کھنہ ایک شہر ہے پنجاب میں, جی, وہاں پر ایک بندہ ہے, وہ بابری مسجد شہادت کے بعد اینٹیں لاتا ہے, ان کو پیشاب کراتا ہے, گھر میں روز کلیش ہوتا, جھگڑا ہو کے بیوی مائکے چلی گئی واپس, اور وہ اکیلا تھک پریشان ہو کے 13 ایک بنتا, سامنے سے ایک 2 روڈ آتی ہیں, ادھر سے جاتا ہے, اس کے سامنے ایک دکان ہے, وہ دکان کرانے کی مشہور دکان چلاتا ہے, اور بالکل سامنے ہر پڑوسی سے وجن ہو گیا, بیچ بازار میں پھانسی لگا کے مرتا, کوئی اس کو بچاتا نہیں, سب سے خودکشی کی اس نے, خودکشی کی. یہ شخص بھی بابری مسجد شہادت میں شرکت کرتا تھا. یہ ایویڈنس وہ ہیں جو میں نے سنائی نہیں, جن کے بارے میں ڈائریکٹ معلومات کی. اچھا, اور بہت سارے لوگ ہیں, ایک آدمی بھی, جی, آپ کو ایک دوسرا ہریانہ کا ساتھی ہے, اپنی ماں کے ساتھ نہ کرنا. جی جی, ہاں. اس کے علاوہ جو میرے ساتھ تو یہ طرح یہ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ بابری مسجد میں جو لوگ بھی اس کے گرانے میں جو ہندو بھی تھے, جو ظاہر متعصب قسم کے تھے, تو جہاں تک ان کو معلومات ہے ان میں کوئی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکا. اس سب کی اسی قسم کی کیفیات تھی. کسی کو ڈرونے خواب آ رہے تھے, کوئی بالکل نفسیاتی پاگل ہو گیا. اچھا, تو نہیں, مفتی صاحب آپ نے بیچ میں ایک لفظ بولا متعصب. ہندوستان کی سرزمین پہ میں سمجھتا ہوں متعصب کوئی نہیں ہے. اچھا, متعصب بنایا گیا ہے. یعنی ہندو خود متعصب نہیں ہوتے, ان کو بنایا جا رہا ہے. ہندو لفظ جو ہے نا, ہم نے بڑے پیار سے, میرے نبی نے الہندی کہا ہے. جی جی, حدیث میں آتا ہے, بخاری میں ہند کا ذکر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہاں کے جو لوگ اتنے پیارے ہوتے ہیں. ایک دیکھیے, میرے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب بڑی اچھی بڑی پیاری بات کہتے ہیں, جس کمرے میں بیٹھے یہاں روشنی ہے, ابھی سب کے چہرے ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے, روشنی کی وجہ سے, رات کا وقت ہے یہ, لیکن جب لائٹ بند کر دیں تو یہاں کیا آئے گا, اندھیرا آئے گا. اندھیرا کون سی جگہ پہ آئے گا, جہاں روشنی تھی. جب مسلمانوں نے یہ دعوت کا کام, دین کا کام, انسانیت کا, بھائی چارے کا کام بتانا بند کر دیا, ہم نے انٹروڈکشن اپنانا کرانا بند کر دیا, تو وہ لوگ انٹروڈکشن کرا رہے, کس چیز کا کرا رہے, ان کو معلوم ہے اسلام کی حقانیت سے. جتنے RSS کے لوگ واقف ہیں, میں سمجھتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, RSS کے لوگ آج قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تاکہ کسی کے بیچ میں قرآن کی پروننس بولنا پڑے تو وہ کہہ سکے کہ میں قرآن کو جانتا ہوں, پڑھتا ہوں. وہ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں, وہ چاہے مقصد چاہے جو ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے مسلمان اس عمر میں آ کے عربی سیکھ رہے ہیں. مسلمانوں میں کاہلی سستی آئی ہے. مسلمانوں کے اندر انٹروڈکشن قرآن کا نہیں ہے, مسلمانوں کے اندر ویدانیت کی باتیں نہیں ہوتی. بس مسلمان بحث مباحثے پہ آ کر, میں ایک بات اور کروں کیونکہ اس آپ کے چینل کو زیادہ مسلمان دیکھیں گے, ایک بڑے موقع کی بات کہتا ہوں. میں نے اسلام قبول کیا, میرے شیخ نے مجھے جماعت میں جایا, میں جماعت میں جانے والا بنا. مسلمانوں نے خود مجھے ٹوکا, کہا کہ آسمان سے ٹپکا کھجور پہ اٹکا, تبلیغ جماعت میں شامل ہو گیا. اچھا, یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں, ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں. کہ اب بھائی آپ یہ بتائیے, اگر مجھے دعوت دیتے, کوئی خانقاہ والا دیتا, کوئی مدرسے والا دیتا, کوئی کسی بھی قسم کا جیسا لوگ دعوت دیتے, میں مدرسہ بن جاتا. اس میں اسلام میں آنے والے کی کیا غلطی ہے؟ مسلمان تو یہاں پہ فرقے بندی ڈھونڈ رہے ہیں, مسلمان یہاں پر اسلام نہیں ڈھونڈ رہے ہیں.
فرقہ اب मुसलमानों हर आदमी ने- अपने फिरके को प्रमोट कर रहा है. जी जी, मेरे साथ कितने सारे हालात हुए, एक शख्स का छोटा सा, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं, वही लोग दोबारा भी आते जाते हैं. अब हम मलेशिया में इस वक्त अक्टूबर का आखिरी अशरा है 2019. हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब गैर मुस्लिमों में तबलीग के हवाले से एक वर्कशॉप करवा रहे हैं. तो उस वर्कशॉप में हम शिरकत के लिए आए हैं, गैर मुस्लिमों को दावत देने का तरीका. तो वहाँ उसी दौरान हमारी मुलाकात बहुत सारे ऐसे लोगों से हुई जो पहले गैर मुस्लिम थे, फिर इस्लाम कबूल किया उन्होंने. तो उनमें आपके सामने अभी ये भाई मोहम्मद आमिर बैठे हुए हैं जो बाबरी मस्जिद गिराने में पहल थे, फिर अल्लाह ने इनको इस्लाम की तौफीक अता फरमाई. जी तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं, मुसलमान खुद मुसलमान हो जाएं, जी वो इस्लाम को समझे, मुसलमान ईमान वाला मुसलमान होता है. मैंने तो ये सीखा है, 14 साल मदरसे में थोड़े दिन मैंने जी चप्पलें सीधी की हैं उस्तादों की. अब यहाँ पर मुसलमान हर मदरसे वाला कहता है मैं ही तालीम सबसे अव्वल है, मैं सबसे अव्वल हूँ. जी. जमात के साथ ही कहते हैं यही एक काम है, गोया बाकी जहन्नम को जा रहे हैं. अच्छा. मैं मतलब आधे जुमले बोलने से तो नुकसान होगा ना. मैं सामने हाजी साहब की तरफ उंगली करूंगा, हालांकि मैं इनकी एक कमी निकाला, मेरी तरफ तो 3 उंगली हो रही, वो नहीं देख जी, रहा हूँ. मैं आपके साबित सुफा के चारों शोबे पे काम होना चाहिए. मुसलमान पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ जिस दिन करेंगे मुफ्ती साहब, उस दिन ही इस दुनिया की सूरत हाल बदलेगी. सही. इस दुनिया को सुकून, प्यास की मोहब्बत की जरूरत है, प्यार की जरूरत है. माशाल्लाह. ये जितने आरएसएस में लोग हैं, मैं इनको अंदर से जानता हूँ. इनके साथ मैंने दोपहर की तड़पती दोपहर में जब कड़कती धूप होती थी, ये ठंडा पानी का नजम करते हैं स्टेशनों पे. कौन करता है? आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं. वो छाइयां भी हैं उनमें, लेकिन उनको एक नाम पे क्योंकि उभारा गया कि मुसलमानों ने ऐसा, मुसलमानों के खिलाफ उनको जहन साजी की गई, तो ये लोग हुए. और जैसा कि सन 47 से पहले जो हुक्मरान हुए, उन्होंने कुछ मौके उनको फराहम कराए हैं. उनकी कुछ कमजोरियां रही हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ. वरना आरएसएस के वो लोग जो ये कहते हों कि भाई सर्वे वसुधैव कुटुम्बकम, मैं संस्कृत बोल रहा हूँ. अच्छा. पूरे आलमी दुनिया जो है वो एक कुनबा है, परिवार है. सर्वे वसुंधरा कहते हैं सरजमी को. जी. ये जमीन, पूरी जमीन है, वो हमारा घर है, सब हम परिवार है, कुनबा है. जो ये बात कहने वाले लोग हैं, वो उन लोगों ने, जब सारे दुनिया के लोग एक कुनबा हैं, तो दाढ़ी रखने के बाद वो दुश्मन कैसे हो गया? जी. ये बात इनको समझाने के लिए कौन आएगा? प्यार मोहब्बत की पैगाम देने वाला समझाएगा, हम एक दूसरे खून के रिश्ते के भाई वो समझाएगा. वो लोग जो लोगों के अंदर ब्राह्मण बड़ा है, वो दलित छोटा है, वो बड़ा है, वो छोटा, वो लोग कैसे समझाएंगे? वो तो खुद फिरकों में बटे हुए हैं. मुसलमान एक कुरान को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी की पैरवी करने वाले मुसलमान जब फिरकों में बढ़ते हैं, यहाँ समझो. यानी आपका ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो इस्लाम से दूर करने वाली चीज है वो मुसलमानों का फिरकों में बटना, फिरकों में और सिर्फ अपने काम और अपनी तंजीम को बरहक कहना, बाकी सबको गलत कहना. जी जी, मैं यही. अच्छा अच्छा. उसके अंदर ये बात है कि मेरे एक साथी ने इस्लाम कबूल किया. हमारे हाजी साहब साथ बैठे हैं, इन्होंने एक जमात की जो है ना रुख बना के दिया. उसमें 17 नौ मुस्लिम साथी थे, 4-5 खानदानी मुसलमान थे, और जमात का रुख लेके गए. तो एक लखनऊ एक जगह है रायपुर के पास, जी. वहाँ हमारी जमात काम कायम कर रही थी. सब साथी थोड़ा आराम करके तालीम के बाद, कोई कईयों को क्या आराम कर लो, लेकिन कुछ साथियों को नींद नहीं आ रही थी. तो मुझे कहा हमारे आमिर साहब ने कि भाई ये हमाम का खाने बहुत गंदे हैं, बाहर से वॉशिंग पाउडर ला के हम साफ कर लेके, साबुन से हाथ धो के मिसवा करके हमारी नियत थी 2 रकात नियत नमाज पढ़ेंगे. तो मिसवा कर ही रहा था, मेरे साथी पीछे एक नौ मुस्लिम बैठा है. और वो अच्छा, आप 4 महीने की जमात में निकले हुए थे, मिसवाक कर रहे थे, पीछे एक नौ मुस्लिम बैठा हुआ था, वो रो रहा था. अच्छा. अब मुझे उसकी नौयत मालूम थी. उसकी नौयत ये थी हज़रत मुफ्ती साहब, जब उसने इस्लाम कबूल किया, जमात में आए, तो उसके घर वाले पंचायत के कुछ गाड़ियां लेकर के जमात में से उसको वापस लेके चले गए. वहाँ फितना ना हो तो वहाँ के लोगों ने उनके हवाले कर दिया. वापस आके रात भर उसको मारा. उसकी बीवी ने, उसकी कारगुजारी ये थी कि उसने कहा कि सब मार रहे थे, तो उसकी बीवी ने पास खड़ी थी, जो शादीशुदा था, और जो हमारे यहाँ फावला होता है ना कस्सी खोदने के लिए, जो खेतों में काम आती है, उसका जो लकड़ी डली होती है, उसको हमारे यहाँ बिंटा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, वो लकड़ी निकली हुई थी. उसको देखे, अब उसके देवर के हाथ में देके बोली, यानी कि अपने शौहर के छोटे भाई को उसके हाथ में लकड़ी देके बोली, इसके सर में मारी, मुसलमान बन गए. अच्छा.
मुसलमान होने को इतना ज़्यादा बुरा माना उसकी बीवी ने कि खुद के शोहर को पिटवा रही है। तो कहने लगा, वो कह रहा था आमिर भाई मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा, जब मेरी बीवी ने खुद ये कहा इतने साल मेरे साथ रही कि इसके सर में मार, तो मुझे बहुत गिला आया। अच्छा। और वो कुछ बातें याद करके रो रहा था। अब ये रो रहा है, पीछे से एक साहब मुसलमान आए, मुंह में पान अच्छा सारा उससे खींचते हुए उसको लेके, ये नहीं देखा ये कहाँ जा रहा, खींचते हुए लेके गए। जब तक मैं चप्पल पहन के गया तो बाहर पान की दुकान के सामने 3-4 लोग ठहरे थे, उनको बता कैसे इस्लाम कबूल किया। वो आदमी रो रहा है, परेशान है अपनी हालत से। यहाँ के लोग मुस्लिम सिर्फ कारगुजारें सुनते हैं, उनके हालात से 2-4 होना नहीं चाहते। कोई जज्बे में कहते मैं तेरा मामू, मैं तेरा भाई हूँ। अब उसका ससुर कौन बनेगा, उसका साला कौन बनेगा, ये बड़ा मसला है। उनकी बीवी साथ में नहीं आती, उनके साथ बहुत सारे हालात है, घर छोड़ के आ गया है, खुले आसमान के साथ रहना पड़ रहा है। सही। ये हर जगह आएगा। जी, आज अगर राहुल गांधी भी इस्लाम कुल करे, उसके घर वाले निकाल दे तो वो हिजरत करके आएगा। हमें तो मसले मसाइल ही मालूम नहीं। हमारे लोगों ने ज़कात लगाने के 1-2 जगह जरूरी, माफ करना मैं मौजूद बड़ा ना करते हुए मुझसे करता हूँ, क्योंकि आपके यहाँ तालीमी लोग ज्यादा बैठते इसलिए मैं कुछ अर्ज करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। अच्छा, मुझे कैसे जानते हैं आप, पहले ये बताएं। नहीं, मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे साहब आपके इतने सारे जो है ना अलग अलग चैनल से आपके यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं आपकी वीडियोस मेरे पास, और 12 तौर पर मेरे शादियों पे भी बयान सुने आपने? मुफ्ती साहब एक बात है, बल्कि मैं तो आपका मुरीद हूँ इस मामले में। मेरी शादियों के मामले में 3 शादियां हुई हैं मेरी। अरे माशाल्लाह भाई, जिंदाबाद, नारे तकबीर। और नंबर 2 मेरी 5 बेटियां, एक बेटा है। इस माशाल्लाह। से आप साधु हुए मुफ्ती। बाप, मेरी भी 3, आपकी भी 3, आप दोबारा से हाथ मिलाएं। माशाल्लाह। पहली मेरी घर वालों ने कर दी, दूसरी हजरत के हुक्म से हुई, तीसरी मसलेतन हो गई। बस अभी वो फिर हम वो अगले इंटरव्यू में आपसे वो पूछेंगे कैसे कैसे हुई, ताकि लोग इससे भी नहीं, थोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझ पे ये इल्जाम न लगा दें, इसलिए 17 साल बाद दूसरा निकाह शादी किया मैंने। अच्छा। कि एक मुसलमान हुआ इसलिए कि दूसरी शादी कर सके। हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना लोग। अच्छा, आपने फौरन दूसरी शादी नहीं की ताकि लोग ये ना समझें कि ये शादी के लिए मुसलमान हो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, बाज हिंदू शादी के लिए भी गैर मुस्लिम जो है। लोगों के अंदर वो एक देखिए, जिस बीवी ने आसमान पे जोड़े बने हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा गुमान है पूरा। हाँ। जिसका रिज्क मेरे घर में लिखा है, उसको अल्लाह ने जोड़ा बनाया तो मेरे घर में आएगा, वरना आ नहीं सकती। जी जी। आपके भी घर में जो हैं हमारी भाभियाँ, उनका रिज्क आपके घर में तो हो गया, और आप इस मौजूद की तरफ भी तो माशाल्लाह अच्छा वो है। बहरहाल दूसरी चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो नो मुस्लिम के ताल्लुक, सिर्फ एक आखिरी गुजारिश कर दूं, जो भी लोग जिस भी जरिए से, जिस भी चैनल से इस्लाम में आ गए हैं, उनका एहतराम कीजिए। मुझे मेरे ऊपर भाई ये पैगाम दे रहे हैं। मैं जरा, असल में कराची के लोग और पाकिस्तान के लोग थोड़ा उर्दू थोड़ा सा फर्क आता है ना, तो मैं थोड़ा अपनी जबान में भी समझा दूं। भाई इनका खुलासा ये है कि जो गैर मुस्लिम है ना, एक तो इनसे नफरत ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे यानी इमेज दुनिया में गया हुआ है, लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे, इस्लाम की बात करेंगे, तो वो सब प्यासे हैं। दूसरा, जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसकी परेशानियों को समझें, बस ऐसे ही जो है ना छोड़ देना उसको, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी जी। यानी उसकी परेशानियों को समझें। वो जब कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो उसकी बीवी, उसके औलादें, उसके रिश्तेदार सब उससे यानी सब छिन जाते हैं। तो फिर ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि उसको वो सपोर्ट करें। और दूसरी बात यह कि जो फिरकावारियत फैल रही है बहुत ज्यादा मुसलमानों में, हर तंजीम, हर जमात ये समझती है हम ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं, तो ये बहुत ही यानी गलत तरीका है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी चीज आपको, क्योंकि मुफ्ती साहब आपके खास तौर पर, और वो शादियों वाली बात भी इन्होंने की थी, वो तो आपने सुनी ली एक होगी। जिक्र मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जी जी। आप क्योंकि मसले मसाइल पे भी बोलते हैं, मैं नामुस्लिम के सिलसिले के काफी मसाइल पढ़ता हूँ। अच्छा। मेरी अरबी मजबूत नहीं, इसलिए मैं उसके हवाले नहीं दोहरा रहा हूँ। हाँ अगर एक आदमी इस्लाम कुल करता, मर्द या औरत, जी उसके कफिल सारे मुसलमान हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे किसी जनाजे की नमाज के लिए चंद लोग नमाज पढ़ ले तो सारी उम्मत का जो है फर्ज किफाया अदा हो जाता है। जी इस तरीके से अगर उस शख्स ने जिना कर लिया, जी, वो सारे कफिल उस जानी होंगे। ये जान लीजिए, ये बात मैं बड़े दुरुस्त हवाले के साथ ये कह रहा हूँ। कफील कौन होता है? जो उस मामले का जानकार है। हम मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान उसके कफील हो गए। वो सही। भूखा मर रहा है तो सब लोगों पर उसका जी। अजाब आ रहा है। वो प्यासा है तो वो आ रहा है। हाँ, ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी गैर मुस्लिम मर्द हो या औरत हो, मुसलमान हो, तो सब मुसलमान फिर उसके जिम्मेदार हैं। अगर वो भूखा मरेगा खानदान से कटने की वजह से या उसका कारोबार छीन लिया, तो सारे मुसलमान उस गुनाह में बराबर के
शरीक हैं फिर। तो खैर जो मुसलमान उसको जानते हैं कि ये हाँ। इस्लाम कबूल किया है, वो जी, जो जी। बीच में रहा जी, वो जी। उसके जिम्मेदार। वो तो ज्यादा ही करीब है, उसका तो सीधे तौर पर वो जिम्मेदार हो जी। जाएंगे। और कुछ लोगों ने यहाँ तक मैंने सुना, क्योंकि जमात में जाता था, मैं बदगुमानी नहीं कर रहा जी। हूँ, मतलब मैं हिंदुओं से बदगुमानी नहीं कर रहा, मैं रेतमरा जी और हमारे विनय कटियार जी से अभी आज बड़े जी लगा के बात करता हूँ, जी। बड़े प्यार अदब से बात करता हूँ। हमारे जी। हजरत ने बड़े प्यार मोहब्बत का कानून हमें सिखाया है। मैं ये कहना ये चाहता हूँ, ये हमारे मुसलमान जब ऐसे माहौल आते हैं, जो कहते हैं, कई लोगों से मुंह से ये सुना, पता नहीं भरोसा नहीं इसका कब तक ईमान पे ठहरेगा, ये लफ्ज भी पैसा है। अच्छा। जैसे कोई जवान बच्चा है, इसकी शादी तो कर दें, हो सकता है ईमान पे ठहरे कि नहीं ठहरे। अच्छा। भाई आपके घरों में मैं देखिए पाकिस्तान की भी मेरे पास बहुत सारी खबरें होती हैं, जी। क्योंकि जमात में लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और कितनों की बच्चियां नहीं भागती, कितनों के बच्चे गैर मुस्लिम बच्चों से ताल्लुक नहीं रखते, शादी से पहले नाज़िर ताल्लुकात नहीं रखते, कितने लोगों के ईमान से खारिज होने वाले खबरें हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से भी आई हैं, आपके यहाँ से भी आई हैं, काफ़ी कुछ मामला है। अच्छा। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, हम दूसरे के एडवांस के जानकार कैसे हो गए? यानी मतलब ये है कि जब कोई गैर मुस्लिम अच्छा मुसलमान गुमान- हुआ है तो हमें अच्छा गुमान रखने का हुक्म है, उसको ये ताने देना कि अबे देख लेंगे, अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये जो दौर है, मैं से आज मैं बोल दूं, मोदी 2 गवर्नमेंट इंडिया में आई, जैसे जब से ऐसे पहले मोदी 1 में भी ऐसे बोलते थे लोग, अब दावत का काम बंद हो जाएगा, ऐसा। ये दावत के काम के खिलाफ नहीं है साहब। अच्छा, यानी मोदी को भी दावत के काम के खिलाफ कोई वो तकलीफ नहीं देखिए, है, मोदी- दावत के काम पर कोई वो मोदी नहीं। कोई अकेला हुकूमत नहीं चलाता है, जी। ये अमला चलाता है, जी। जो यहाँ पे सिस्टम काम करता है, हाँ, वो इंटेलिजेंस सिस्टम पूरे मुसलमान उलमा पे नजर रखता है। सही। और जब मुसलमान जब तक गलती नहीं करते उस दायरे में आते नहीं है। यानी मतलब ये है कि मुसलमान दावत का काम भरपूर तरीके से करे, कानून के खिलाफ न चले, बस आप जी, ये कहना चाहते जी, हैं, तो फिर कोई रुकावट नहीं कोई है, रुकावट नहीं। ये उसका खुलासा है। जी हाँ जी, जी। अब जी। यहाँ पर अगर रुकावट होती तो अभी हमारे एक ये एक मेरा मकसद शायद ये भी हजरत मौलाना कलीम से सिद्दीकी साहब से बात हुई, कह रहे हैं कि एक एहतराम भी करे, पुरतशद्दुद रास्ता कोई इख्तियार न करे, सामने वाले को इज्जत दे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, उसको इज्जत दे, उसको ये साबित करे कि मैं आपका खैर ख्वाह हूं, मेरा कोई जाती मफाद नहीं है, माली मफाद नहीं है, तो पूरी दुनिया में आपकी बात सुनी जाएगी। और बहुत से लोग प्यासे हैं जो दीन की तरफ आना चाहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को, जी क्यों भग इनसे पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब को क्यों पकाया अगर वो मुतासिब नहीं है। हाँ, ये मैंने पूछा था, मैं जरा इसका बता दूं थोड़ा सा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हजरत मौलाना से अभी हमने बात की, वो कारगुजारियां बताएं ना, आपने मस्जिदें कितनी बनवाई। वो तो ऑन द रिकॉर्ड उसमें यूट्यूब पर मिलेगी, रिपीट हो जाएगा। नहीं देखें जो मिलेगी वो तो उस चैनल पे ना, हमारा चैनल तो लाखों लोग तक जाएगा इंशाल्लाह। आप अपना जो है ना, पहले हम जो पूछ रहे हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? मैं वही जिक्र कर रहा वो था। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात जो चल रही थी ना, वो यही चल रही थी कि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कोई ऐसी पुरतशद्दुद बात की नहीं थी, उसमें बहुत से हमारे ही लोगों भी को जो है ना, वो भी हसद का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से वहां इंडिया में उनके लिए मुश्किलात हुई हैं। अगर खुद हमारे अपने लोग उनका साथ देते, जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक का, हमले में फिरकों में बटे हुए हैं ना हम लोग, तो किसी एक फिरके को वो पसंद नहीं आ रहे, किसी को पसंद आ रहे हैं, तो जिनको नहीं पसंद आ रहे फिर वो मसाइल खड़े कर देता है। तो खुलासा ये है कि हमारे अपने कामों में, यानी दीन के कामों में खुद हमारे अपने लोग भी बहुत रुकावट हैं। तो जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ भी कुछ इसी किस्म का मामला हुआ है, वरना उनका बेचारों का दहशतगर्दी से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं हो, तो खालिसतन दलाइल की दुनिया में एक काम कर रहे हैं। जी जी, असल हुआ ये था कि मैं जब उस दौर से गुजर रहा था कि जब ख्वाबों ख्यालों में रात में मुसलमान पीछे दौड़ते थे, भाग हो गया बलबीर सिंह मारो इसको। हाँ, आप वो ख्वाब सुना रहे थे, छुरियां लेके औरतें आपके पीछे भागती थी। जी, तो उसमें होता ये था कि मेरे साथ लगातार नींद ना होने से हाँ, इंसान में एक कैफियत आती है कि उसको ख्वाबों ख्यालों की दुनिया हकीकत लगती है। अच्छा जैसे कोई ख्वाब आ गया लगातार आ रहा है तो उसको लगता है कि परसों ये चीज हुई है ऐसा। अच्छा अच्छा तो मुझे ये लग रहा था कि ये हकीकत है, ये मेरे साथ ही होने वाला है। अच्छा। तो उस हकीकत के मद्देनजर में सोचता मेरा मौत तय है, अब मैं मरूंगा, मुझे कोई बचता तो है नहीं, बड़ी भयानक मौत होगी। उससे डरते हुए मैं घर से निकला, पानीपत में कारोबार करते वहां भी नहीं जाता था। तो फिर मैं घर से निकल करके इधर उधर भटकते हुए जा रहा था। तो इस बीच में मेरा एक साथी था, वो तो इससे आगे बढ़ के उसने क्या किया,
गांव के जमींदार का इकलौता वारिस है। अब आप ये बताइए, हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास की ज़मीनें बहुत महंगी होती हैं और इकलौता वारिस है तो उसका तो सैकड़ों बीघे ज़मीन है, तो उसका इकलौते वारिस की इज्जत वैसे होती है, शरीफ आदमी है और अच्छा लगता है। पहले गांव में खूब इज्जत है उसका। अब वो जब से वापस आया, मेरे साथ था वो जोगिंदर पाल सिंह उसका नाम था, अब उसकी हरकतें तब्दील हो गई। वापस आए तो उन लोगों ने क्या कहा था कि वहां से ईंटें सबूत मिटाने के लिए हटाई थी शुरू में। फिर वो कहा कि इन पर हिंदी में कहते हैं पेशाब करो, यानी मूत्रदान करो इन पे, ये इन्होंने कब्जा किया है हमारे मंदिर की जगह पर। बोला इस तरह की बातें चली तो सब हुआ। तो ये शख्स जो है ना, अपने पहले पेशाब करने के उसूल जाते नहीं है हमारे यहाँ गैर मुस्लिम भाइयों में, जहाँ जगह मिली अक्सर वैसे आजकल तो होने लगे। वो दौर में 93 में 92 वो जमाने में इतने ज्यादा बाथरूम इस्तेमाल नहीं करते थे इस्तेंजे के लिए जी। अब वो पेशाब घर में रखे जरूरत के लिए, जैसे हाजत होती बार तो घर में आकर उसको बिला पेशाब करते। अब उसके साथ जो हालात आए, जिस भी औरत को देखे जिना की नीयत से माइल हो, अब वो चीखे चिल्लाए मार ताड़। गांव का कोई शख्स ऐसा नहीं बचा जिसने जूते चप्पल ना मारे उस शख्स को। एक देखिए, सब पहले इज्जत कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, अब वो जूते चप्पल का शिकार हो रहा है। यहाँ तक देखिए, असल में मैं उसको सामने नहीं दिला, लेकिन एक बात सामने ये आई है, क्योंकि मैंने 12 जो सुन लेते हैं और वो बात कहनी चाहिए। ये तमीज तक भूल गया था, ये मेरी माँ है, बस मैं इससे ज्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल। ये अल्लाह का अज़ाब था। तो अब उसके वालिद साहब जो है ना, रघुवीर सिंह, उनके वालिद साहब ने बंदूक थी घर में, बंदूक लेके मारने का फैसला कर लिया। अब ये तो इंतहा हो गई। तो उनके पड़ोसियों ने जो है कहा कि रघुवीर सिंह ये तो पागल हो गया, तू भी पागल हो गया इसके साथ में, ये बंदा पागलपन में ऐसा कर रहा, तुम इसके साथ तो सही हालत में कर रहे हो, इसका इलाज कराओ। उसका इलाज कराने के लिए वो इधर उधर दौड़ रहे थे। इलाज कराने के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के पास लेके आए। उसकी वजह क्या थी, उन्होंने कहा कि आज इस पंडित जी के पास जा रहे हैं, आज उसके पास जा रहे हैं, आज ये मन्नत मांगी, कल वो मन्नत मांगी। वो जब महीने के करीब गुजर गया, नहीं आराम लगा, डॉक्टरों से इलाज कराते थे, मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते डॉक्टर, जब तक नशा रहता तब तक वो बेहोश, उठने के बाद वही हरकतें चालू। अब वो जंजीरों में बांध के रखते थे। आखिरकार जब वो कहा कि मुसलमान मौलवी के से इसका इलाज करा, हमारे आज भी अकायद है, पंडितों ने कहा कि मुसलमान मौलवी, और वहाँ के गाँव के लोगों ने कहा कि मुसलमान मौलवी से इलाज करा। हमारे यहाँ आज भी कितने सारी औरतें हरियाणा पंजाब में वाले के पास तो अल्लाह जो देखिए अच्छी नीयत होती है, जब अल्लाह ताला तौफीक देता है, रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। वरना हमारे रास्ते कोई वरना भी 4 जिन आपके ऊपर होते सुहानी वाला यहाँ भी ठहरा नहीं गया जी। अब यहाँ पे मसला यह है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान मौलवी कहाँ मिलेंगे। सन 92 में आप उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे ना? नहीं इस वक्त नहीं। देखिए, सन 92 में हरियाणा पंजाब में जितने मदारिस थे, जिसमें यूपी बिहार बंगाल के जितने भी उलमा मदरसे खोल के रहते बच्चे थे, तकरीबन छोड़ के चले गए थे उस रात से। मौलवी दिखना बंद हो गए थे। तो कहा यहाँ मौलवी कहाँ मिलेगा, कहने कि एक मौलवी जरूर है, वो हर महीने के पहली तारीख आता बिला नागा, और हजारों मौलवी का गुरु है, उनकी जुबान में बोले हरियाणा जुबान में। तो वहाँ पे जिसके सोनीपत में उनको लेके आए, फिर उनसे मुलाकात दूसरी जगह होके, वहाँ उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर होकर ऐसे कुछ अल्फाज हज़रत ने कहे कि ये तो भाई अपने अल्लाह का घर तोड़ के आया है, इसका बिल्ला मेरा बिल्ला है, मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। वो माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे। अच्छा। और यानी हजरत ने ये फरमाया कि ये तो अपने अल्लाह का घर तोड़ कर आए हैं, जो हमारा भी अल्लाह और आपका भी अल्लाह, जो भी अपने अल्लाह तो सबका एक ही है, जो अपने मालिक का घर तोड़ेगा उसको के साथ तो फिर ये होगा। और माफी मांगना था, वो उसी मालिक से मांगो, वो तुम्हें माफ कर देगा, और अल्लाह बड़ा गफूर है, बड़े माफ करने। ऑप्शन थोड़ा नहीं, और प्यार से कहा, जबकि कई जगह गए जिक्र किया तो उनकी भौहें थम जाती थी। अच्छा। तो हज़रत ने कहा, देखिए जब कोई मासूम नियत में कोई गलती होती है, भड़काने से कोई गलती होती है, तो उसको माफ कर देना, माफ कर देना जरूर। वो जमाना दौर वो गुजरा था, और उस दौर में भी सन 92 के जो दिसंबर के बाद जनवरी के महीने में भी जलसे कम करना बंद नहीं किया। हज़रत अली ने मेरे शेख ने ये बात की थी कि अब पैमानी फोरम के तहत जलसे करते फिर हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उस दौर में उस जलसों में मुलाकात करते थे।
बहरहाल वहाँ मुलाकात की, जब ये प्यार भरी बातें की अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो उनके वालिद साहब तो कहने लगे हम कैसे माफ़ी मांगे हज़रत, हमें तो ना उर्दू आती ना फारसी आती ना भी आती, हम कैसे माफ़ी मांगे। तो बहाने की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह ताला किसी ज़बान का मोहताज नहीं है, वो तो बल्कि गूंगों की ज़बान, दिल की ज़बान समझता है। तो जब ये बात कह के उनको जिक्र किया और वो नमाज तैयार थी, तो ये मस्जिद के अंदर चले गए और वो कहने लगे साहब मैं कैसे पाक साफ नहीं हूँ, बाहर गमछा बिछा के बेचारा वहीं बैठ के हाथ उठाए। इसके वालिद साहब हजरत ने कहा मैं दुआ करता हूँ, अंदर गए नमाज पढ़ के जो दुआ की, इस्तेमाल में तकरीर की। देखिए हजरत ने बड़ी एक प्यारी तकरीर की, थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक नकल किया था कि हक अदा करना ईमान है, हक मानना बेईमानी है। हमने अगर हक अदा करना ईमान है, हक मारना बेईमानी है। कि अगर हमने, किसी ने पूछा था 2 जुमलों में ईमान का पूरे तफसीलात सुना दीजिए, तो इस पे जुमले तो हदीस में मुबारक भी। तो बहरहाल उन्होंने कहा हक अगर हमने इनका अदा किया होता तो आज ये लोग ये मस्जिदें तोड़ने वाले ना होते, कम से कम जानते तो मस्जिदों के मसाइल के। ये मानते नहीं मानते अलग बात है, जानते जरूर। हम मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं। जानना उसके लिए जरूरी है मानने के लिए, और हम जानेंगे तो फिर इसकी दावत भी देंगे, तबलीग भी करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले इनको बताना बंद कर दिया जिसके दिल में ये सब कुछ हुआ है। अल्लाह अगर ये गुनाहगार है योगेंद्र पाल सिंह, ये रघुवीर सिंह जो गुनाहगार है, तो अल्लाह हम भी गुनाहगार हैं। हम तो ये तो अनजाने में गुनाहगार हुए, हम तो जानबूझ कर गुनाहगार हुए। हमने वक्त रहते इनको नहीं बताया कि मस्जिद किस जगह पर तामीर की जाती, मस्जिद कब्जा करके नहीं बनाई गई थी। अगर ये बताया होता तो आज ये उस गुनाह में शरीक ना होते, हम भी उस गुनाह में शरीक। अल्लाह हमें भी माफ कराना और ये लोग बैठे को माफ कराना। और रो रो के जब ये बातें ये पूरी इज्तिमाई दुआ मांगी, इज्तिमाई दुआ, तकरीर भी इस मौजू में, फिर दुआ भी इस मौजू की हुई। आप समझे कि रो रो के हाल बेजार था। वो जमाना जो जब बाबरी उससे शहीद हुए, दिलों को चोट पहुंची हुई थी, और फिर जमात के जुड़े हुए लोग 1 महीने का जोड़ भी, तो उन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों ने जो रो के दुआ की है, अल्लाह ने उसका मोल सीधा दिखाया। देखिए आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ना फूक की, ना दम किया, ना उनको पानी पड़ के दिया। वो जिक में बंदा जजेरों में पड़ा है योगेंद्र पाल सिंह, और इनके वालिद बाहर गमछे में बिछा के दुआ मांग रहे हैं, और अल्लाह ने देखिए उनको ठीक किया है। अब क्या कह रहे, पहले दौड़ता था वो औरतों की तरफ, कपड़े देता फाड़ देता, अब वो क्या कर रहा है, मुझे कपड़ा देते, मुझे शर्म आ रही है। देखिए नंगा पड़ा। जैसे ही नमाज में अदब बाहर आए जी, उसने कहा मुझे कपड़ा दो, सदम अदब दुआ की बाहर आए तो वो नंगा जो था उसने कपड़ा, जो कपड़े फाड़ देता था, जो योगेंद्र पाल सिंह मेरा साथी जो पागल था, जी इनका साथी था बाबरी मस्जिद से मेरे साथ गया था, वो ईंट लेके आया था जिसपे पेशाब होता था। अब देखिए हजरत ने कहा उसको कपड़ा दे दो, उसको खोल दो। तो कहने लगे हजरत, उसके वालिद साहब को झिझक हुई। हजरत खोलने के बाद ये कहने या कुछ नहीं कर, पहले बोलता था ये हजरत ने कुछ नहीं, उसके वालिद ने उसको जंजीरों में बांधा हुआ था जी, ताकि भाग ना जाए और नहीं भाग नहीं जाए, कोई ऐसी चोट उल्टी कर हरकत देगा। न करे। मगर बिल्कुल अपनी माँ के साथ जिना करना चाहता था, उसको सब ये तमीज नहीं रही। माँ को चिपटता था। तो अजीब उसका आ गई थी। अब वो क्या हुआ कि हजरत ना इसको खोल दो और कुछ नहीं करेगा। तो खोलते ही बस वो कपड़ा जो उनके वालिद के पास वो गमछा रखते हैं ना, हमारे पर साफा रखते हैं कंधे पे, वो लपेटा, वो पैरों के ना लगा हजरत का, क्योंकि वो साफा नाकाफी हो रहा था, पर्दगी हो रही थी। हजरत ने कहा इसको देखो पैर रखो, तो अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर नहीं झुकाना, अपने अल्लाह से माफी मांगो। तो उनके वालिद ने फौरन जुमला जो कहा, बड़े वो तारीखी जुमला कहा कि हजरत मैं मुसलमान हो गया। यानी उसके बाप ने कहा, रघुवीर सिंह ने कहा, योगेंद्र पाल सिंह ने। तो हजरत ने देखिए, फिर हजरत के बड़ों की बड़ी नजर होती है, उन्होंने कहा भाई तुम मुसलमान तो होना चाहते हैं, उन्होंने अच्छी बात है, इसलिए मुसलमान होना चाहते, मुझे इसका, क्योंकि काफी लोग बैठे हैं। तो और हजरत को साथ काफी लोग आ गए थे बाहर छोड़ने के लिए नमाज के लोग। अब वो हम गांव में से आए तो हमने साहब से आपका एड्रेस लिया, उन्होंने कहा था कि भाई जैसे आपका बच्चा ठीक हो गया मुसलमान हो गया। तो हजरत ने वहाँ पे मजमे के सामने कोर्ट पे कहा था, अगर किसी का कोई मसला हल हो जाए तो मुसलमान हो जाए, इसको मुसलमान होना नहीं पड़ता। किसी की बीवी की मायके से आ जाए, किसी को बेटा हो जाए, किसी का कोई लॉटरी निकल आए या कोई भी फायदा हो जाए, मुसलमान कहते हैं अल्लाह को अपना रब मानना, अल्लाह के नबी के तरीके मानना, जब तक ना माने वो मुसलमान नहीं होता। दूसरा तो रघुवीर सिंह ने फौरन
लिखते जाओ कि हजरत आपने जो किताब पढ़ के दुआ करी मैं उस किताब पे ईमान लाता हूँ, जिस अल्लाह से दुआ की उस पे ईमान लाता हूँ, आप जैसे मुसलमान होते मैं वैसे ईमान लाता हूँ। तो बहरहाल ये सारी बातें जब दोहराई जा रही थी, एक तारीख ने देखा इस खुले आसमान में कि वो दिन उन सब ने जब ये तय करके कहा कि हम मुसलमान होंगे, तो हमारे दायरे में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब के चैनल में बात हो रही है तो बड़ा एक खास लगता है। कुछ लोगों ने कहा जो मुफ्ती नहीं थे फतवे दिए कि इनको फौरन गुस्ल कराओ। उन लोगों ने किए जिन्होंने बेचारों को उर्दू लिखना नहीं आता, अरबी लिखना, उन्होंने फतवा दिया फौरन इनको गुस्ल कराओ। कलमा पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग, कलमा नहीं पढ़ाया पहले उनको गुस्ल करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, बहरहाल हजरत ने भी मसल कहा कि भाई कोई लुंगी ला रहा पानी ला रहा, जमात के लोग थे उनको गुस्ल कर दिया, फिर उनको कलमा पढ़ाया। फिर हजरत ने खत लिख करके, मैं जबकि इसके बीच में अर्ज कर दूं, कोई शख्स किसी शख्स के जब उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं तो फौरन कलमा ने पढ़ाया, जितना देर ताखिर करता है इस बीच में मौत आएगी तो वो उसके गोया उसके कुफर पे उसकी मौत आएगी। कुफर पर राजी ना, कुफर ऐन है इसके जुमले में, जिनमें तो ऐन कुफर है। तो आप इसलिए आप गुजारिश है जब कोई कलमा पढ़ना चाहे उस पर शरीयत लागू कब होती है, जब वो कलमा पढ़ लेता है, इससे पहले उस पर शरीयत लागू नहीं होती है। फिर उस पर पाकी नापाकी बात की मिसाली बात की। तो क्योंकि दावती नजरिए से बात की जा रही है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने फिर हजरत ने खत दे करके हमारे कारी साहब को रहबर बना के भेजा कि वो जमात में छोड़ के आओ। जमात से जब ये 4 महीने लगा के वापस आते हैं तो मैं इनसे मुलाकात करता हूँ मई के आखिर में। जनवरी की 10 तारीख को इन्होंने कलमा पढ़ा, 4 महीने लगा के आए, उसके वापस आने के बाद इनकी मेरी मुलाकात हुई है। अच्छा। और फिर इन्होंने ये वापस मुझे हजरत मौलाना कलीम साहब के पास लेके, मैं भी इसी दौर से जब वो गुजरा। पहले मुसलमान हुए फिर आपको लेकर गए? जी, उनका नाम मोहम्मद उमर रखा गया, इनके वालिद साहब का मोहम्मद उस्मान। और 4 महीने लगा के दोनों बाप बेटा वापस आते हैं। मेरे से मुलाकात हुई, फिर हजरत से मेरी मुलाकात हुई। अब मैं डर रहा था कि दिमाग में वहम था, मेरे वहमी आदमी हो गया था उस टाइम कि इन्होंने मुसलमानों से सौदा कर लिया, मुझे हवाले तो नहीं कर देगा कि मुसलमान मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मैंने बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। बहरहाल अल्लाह ने हजरत की शक्ल देख के मुझे नहीं लगा ये आदमी शांत है, ये नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। एक तो ये थी। दूसरी चीज ये कि हजरत ने कहा कि भाई ये कोई कह रहा फ्रूट खाओ, कोई कह, मुझे लगा खिला पिला के मारे, तब भी बहम था थोड़ा थोड़ा कि ये हो सकता है हजरत तो शरीफ है, लेकिन देखिए मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। वहाँ के कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक लिखा है कि हम अल्लाह ने माफ कर दिया होगा, हम थोड़ी माफ कर सकते हैं। ये मुसलमानों के कमेंट में लिख रहा हूँ, जैसे वो इस दुनिया के बादशाह हैं या हुक्मरान हैं, बस इस तरह के। वो देखिए मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के जवाब नबी के सगे चचा को जिसने कत्ल किया था, जब इस्लाम कबूल किया तो नबी ने उनको माफ कर दिया। ठीक है। तो बहरहाल उस दिन जो है ना, हजरत ने वही जुमला 2 मुझसे कहे कि तुम भाई, मैं तो ये मस्जिद के हम इमाम हो सकते हैं, मौजिन हो सकते हैं, मुतवल्ली हो सकते हैं, नमाजी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारा क्या रिश्ता हो सकता है किसी मस्जिद से। इस मस्जिद का मालिक वाहिद अल्लाह है, वो आपका हमारा सबका रब है जी। उस दिन आज मुझे मालूम पड़ता है कि सूरह इखलास और आयतुल कुर्सी की तफसीर मुझे सुना है। मुझ जैसे गुनाहगार को अल्लाह का तारुफ इतना तफसील से सुना है। अच्छा। मुझे ये एहसास हो गया वाकई ये मेरा अल्लाह, इसको माने बगैर मर गया तो मेरा जिंदगी बेकार हो जाएगी। अब मौत भूल गया। देखिए अब यहाँ पे एक अजीब बात होती है, जब अल्लाह का तारुफ हुआ तो मौत भूल गया, मौत का डर निकल गया। अब ये आया कि अगर इस हाल में मौत आएगी तो आएगी जब आएगी, लेकिन इस हाल में मौत आ गई अल्लाह को माने बगैर तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। मैंने कहा हज़रत मुझे फौरन कलमा पढ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा। उसके बाद जो है ना हज़रत के साथ इस सफ़र में फुलत में हज़रत के खानका में रहने का मौका मिला, फिर जमात में भी जाने का मौका मिला और मदरसे में भी कुछ दिन पढ़ने पढ़ाने का मौका रहा। माशाअल्लाह। अब मैं कौन से मदरसे में पढ़े आप? साउल्ला जो है इमाम साउल्ला जमीयत। कौन कौन सी किताबें पढ़ी उसमें आपने? इमाम शाह वलीउल्लाह, ये मदरसे का नाम। मोटी मोटी कुछ किताबों के नाम बताएं। नसाई अबू दाऊद जो असल में नदवतुल उलमा का एक जो खुसूसी जो कोर्स है, नदवतुल उलमा का जो खुसूसी जो कोर्स है ना, चंद लोगों के लिए बनाया गया 5 साल कोर्स है। अच्छा अच्छा। उसमें चंद किताबें जो है ना वो मखसूस पढ़ाई जाती हैं। अच्छा। आलमियत की ताल्लुक से वो सारी जो है ना उन लोगों को जो इस्लाम को करते हैं या एक उम्र तक तालीम हासिल नहीं कर सके उन लोगों। अच्छा अच्छा। 5 साल कोर्स उन्होंने कोई मुरतब किया। तो
उसमें पढ़ने अच्छा का मौका माशाल्लाह मिला। माशाल्लाह। तो उसके जब बाद आप मुसलमान हुए फिर क्या खानदान की तरफ से? एक तो अच्छी बात ये रही, आज तो मुझे अच्छी लग रही है, उस टाइम चाहे अच्छी न लगती थी, जो मेरा दोस्त सड़कों पे गुजरा ना, वो पूरे इलाके के लोग गवाह बन गए मेरे। कोई किसी ने, हालांकि मुझे सीरियस शुरू में नहीं लेते थे, सोचा कि मुझसे दाढ़ी मुझ तो बड़ी रहती थी कि पागलपन के दौर से गुजर रहा था। फिर मुझे तराश के कहा कि मेरे घर वाले तो ये समझ रहे थे किसी मुसलमान ढाबे वाले होटल वाले के यहाँ फंस गया होगा, उन्हें खाना खिला होगा, उनका जैसा बन गया। अच्छा सीरियस नहीं ले रहे थे मेरी बात को। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जब हजरत ने जाना, तो मैंने बताया हजरत का तौर पे हजरत मेरे घर पे जाते, तो मेरे घर के खानदान के लोग हजरत के पैर छूते थे अच्छा कि आपने हमारे बच्चे को बचा लिया। मेरे सामने चाहे जाए ना करें, लेकिन वो एहसान मानते थे हजरत। अच्छा इस्लाम कबूल नहीं किया बेशक उन्होंने, लेकिन वो हजरत का एहसान मानते थे। कि भाई आपने दुआ की, उनका तो एक यकीदा यही था ना, इन्होंने मौलवी साहब ने दुआ की होगी हजरत ने। दूसरा कि बगैर चाय पिए खाना खाए आने नहीं देते थे हजरत का। जब जी उधर से गुजर रहा होता था, हजरत अक्सर दोबारा आते थे, तो बहुत वो था। दूसरी चीज़ ये कि आज भी, अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खानदानी मुसलमान बन गया हूँ, जी तो मेरे चचा भी कलमा पढ़ चुके हैं। जमात आई माशाल्लाह। थी बम्बई की पिछले साल नवंबर में। अच्छा हजरत मौलाना ये भी फरमा रहे थे कि हम जब किसी को जो कोई दावत देते हैं और मुसलमान हो जाए तो फिर उसको दाई भी बनाते हैं, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, तरबियत दे के फिर उसको कहते हैं अपने खानदान पे मेहनत करो। तो पूरे खानदान माशाल्लाह इस तरह से मुसलमान हुए 4 महीने और फिर तबलीग में फौरन भेज देते हैं उनको 4 महीने के लिए तो माशाल्लाह। मतलब अब तो ये भी हो गया। अब तो इंशाल्लाह ताला मेरे, अब जिसको खानदानी मुसलमान कहा जाता है, इंशाल्लाह ताला अनकरीब मेरे बेटे की शादी होने वाले, मेरा पोता होगा तो इंशाल्लाह वो खानदानी मुसलमान होगा, क्योंकि बाप दादा अच्छा अच्छा अच्छा। मुसलमान होंगे। आपका जो है ना बेटा कितना बड़ा है? 21 साल का हो गया। 21 साल का। तो अभी उसी का बेटा भी होने वाला है? अभी शादी का इरादा है, मशवरा चल रहा है। बस उसको बोलें जरा पोते में जल्दी करे, ठीक है ना? वो तो इंशाल्लाह ताला हाँ अल्लाह ताला देंगे। तो मेरा उसको इरादा लेट ये होने है की कि- इजाज़त नहीं है जी। नहीं वो जल्दी शादी करें और अब तो अब एलिया का तो राजा था। पोते के बारे में सुस्ती का शिकार ना हो। जी जी इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द हम लोगों को ये किसको भी सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला कि हम इस दुनिया को एक खानदानी मुसलमान है ऐसा वारिस दें जो दीन का दाई हो। तो आपके फिर दावत पे माशाल्लाह आपके खानदान के कौन कौन चचा एक मुसलमान हुए? मेरे 3 चचा हैं। 3 चचा जी जी, वो कलमे का शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं। माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी अहलिया ने जब इस्लाम को किया मुझसे फास्ट फॉरवर्ड पढ़ती थी। अच्छा आप शादी करके फिर मुसलमान हो गई थी? जी जी, कुछ महीने बाद आके इस्लाम हुआ हजरत के घर में। नूर नाला और दूसरी चीज़ ये थी, अच्छा फिर एक बात काट रहा हूँ, भूल न जाऊँगा, फिर जब आपने दूसरी शादी की तो फिर आपकी पहली हरिया को ये नहीं हुआ कि भाई मैं मुसलमान हो गई, मुझे इसके सिले में ये दे रहे हो कि एक सोगन ले आया मेरे ऊपर? असल में हुआ ये था, हजरत ने, मैं जब फारिग हुआ से हजरत कारगुजारी सुनते थे, मेरे में क्या क्या ख्याल आ रहा है, फिर मुझे जमात में भेजा था कि थोड़ा तरतीब करीब करें ताकि आवाज़ आए ना। तरतीब पर जो लोग चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना चिल्ला 4 महीने की तरतीब पे चलते हैं। हजरत ने एक दिन पुरानों में बात कर रहे थे, मैं भी हजरत के साथ बैठा था। मैं कहता था हजरत आप तो तकरीब मुझे देख के करते हैं, मेरे ऊपर करते हैं, मैं हमेशा ये समझता था। हजरत ने वहाँ पे बयान ये किया, तरतीब पे लाने के लिए तरतीब पे तोड़ के चलने वाले लोग भी हैं अभी, जिसने जिंदगियां खपा दी, जिस काम को लगा दी। आप तरतीब पे नहीं चल पा रहे, चिल्ला आ गया तो चिल्ले की तरतीब पे नहीं चल रहे, 3 दिन की तरतीब नहीं चल रही, 2.5 घंटे की तरतीब नहीं चल रही, इसमें बात चल रही थी। तो उस दिन बात निकल के आई, मैं तो फारिग होके घर वालों ने फारिग कर दिया मुझे इस काम के लिए, तो निकलूँ। तो हजरत ने राजस्थान की जमात में भिजाया था, मैं करीब 2.25 साल बाद वापस हजरत ने बुलाया था, एहतिकाफ का वक्त हो गया था आखिरी असरे में। तो बहरहाल मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। हजरत ने कहा तो ठीक है आमिर मियाँ, वो पूछते रहे कैसी कैफियत है, क्या ख्याल है। मैंने कहा तो मुझे हिंदी में, मैंने कुरान हदीस का मुताला किया है, मुझे इतनी कमांड है, मैं हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, पंडित भी मैं की तरह मैं हिंदी बोलता हूँ। तो हजरत ने कहा सुनते रहे, काफ़ी जगह प्रोग्राम मिले गए। फिर कहा कि जाओ हैदराबाद चले जाओ। हैदराबाद जाने का मौका आया तो हजरत ने, मैंने एहलिया से कहा कि एहलिया कहने कि मैं घर बार छोड़ के नहीं जाऊँगा, बच्चों को यहाँ पे रहना है ये वो। हजरत को कारगुजारी सुना, हजरत ने कहा तो ठीक है इनको यहाँ रहने दो, फिर वहाँ पे जाके दूसरा नहीं कर। तो यानी बेगम जाने के लिए तैयार नहीं हुई, फिर ने कहा वहाँ एक और कर लो। तो नहीं मेरा जो सवाल था ना, क्योंकि बहुत सी खवातीन भी सुन रही होती है ना, जी जी सवाल ये था कि जब आपने दूसरी शादी की, आपकी पहली अहलिया को पता चला
तो उनको गुस्सा नहीं आया कि मैंने मुसलमान हुई हूँ, इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आपने सोतन ले आए मेरे ऊपर? ये असल में पता नहीं हिंदी में सोतन को क्या कहते हैं, सोतन क्या? सोतन ही कहते हैं। सोतन। हमारी बात कोई सोकन ही बोलते हैं हरियाणा में। सोतनवी और सोतनवी दोनों लफ्ज हैं। बड़े अच्छे लफ्ज। असल में हकीकत खवातीन के लिए अच्छा नहीं। खवातीन के लिए अच्छा है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। हम 3 भाइयों में मेरा रंग ज़्यादा सावला है अच्छा। और ऊपर से दाढ़ी रख ली। मेरी एहलिया को एक बात ये सिखाती थी कि मेरी दाढ़ी जब सफ़ेद होने लगी थी मुझे, हाँ। तो हमने कहा एक तो दाढ़ी होगी फिर संभाल के नहीं रखते हो, ऐसा है वैसा। मैंने कहा कि या तो चल दे साथ। हम हरियाणा के लोगों को तबलीग कम आती है, अच्छा। धक्का सही ज़्यादा करते हैं घर में। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं तो भाई वो मुसलमान हो गया, अब तो दूसरी भी हो सकती है। दरवाजे को मजाक में कहा था मैंने। अच्छा। तो उन्होंने कहा देख मुल्ला जी, भगा के तो किसी को लाना नहीं। सही। बिहार से 8-10-20 हज़ार रुपये तक रिश्ता नहीं करना। किसी खानदानी मुसलमान औरत से शादी करो, तेरी बारात में चलो। वेरी गुड। हटो बच्चों। भाभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। देखो मैं दोबारा जरा पैगाम बता दूं, इनकी अहलिया ने कहा कि भगा के किसी को नहीं लाना, किसी घटिया खानदान में शादी नहीं करना, किसी अच्छे खानदान में करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिंदाबाद। फिर गई भी है सिर्फ वैसी बढ़िया लगाई? नहीं, फिर हुआ क्या कि मेरे साले साहब जो मुझे देखने के लिए आए, बाद में साले बने, तो मुझे देखने मैंने पहले अपने बच्चों को बताया, ये मेरे 4 बच्चे, ये मेरी बीवी है, ये मेरा जो भी झोपड़ा घर है, और मेरे भाई भी इसी में रहते हैं। सबसे मुलाकात कराई। तो अल्लाह का शुक्र है, वापिस में डॉक्टर मोती रहमान साहब मेरे सालों से और मुस्लिम भाई आते, वो आए मेरे घर में, सबसे मुलाकात की। मेरी अहलिया है, उनको एक बढ़िया वो जो पैंट शर्ट पहनते थे, सफारी सूट का जोड़ा उनको कहा कि मेरे भाई बनने वाले, एक जोड़ा उनको मैं माशाल्लाह। पहली वाइफ ने दूसरी अहलिया के भाई को जोड़ा इनायत फरमाया। सुभान सल्लु अलल हबीब। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो दूसरी अहलिया जो थी आपकी, वो पहले से मुसलमान थी खानदान? पहले से मुसलमान थी, आलिमा थी। माशाल्लाह। और आज जो भी उर्दू के साफ अल्फाज देख रहे हैं, हाँ। उसमें मुसलमानों का किरदार तो रहा ही है मेरे खास मदरसे। लेकिन उसमें जो मेरी कमजोरी रहेगी, मैं मदरसा भी नहीं किया, उसमें हजरत भी कई बार 12 फरमाते हैं, हैदराबाद में आके माशाल्लाह उर्दू साफ हो गया। नहीं तो जो आमतौर पर गैर मुस्लिम है, जो खासतौर पर हिंदू लोग हैं, वो इस तरह की उर्दू नहीं बोलते? उर्दू बोलते हैं, लेकिन उर्दू टांग पैर तोड़ के बोलते हैं। अच्छा। कि हमारी नजर में तो हिंदी उर्दू एक ही जबान है, खामखा में उसको अलग अलग बिला वजह का नाम दिया हुआ है। असल में उर्दू की अदायगी जो अल्फाज की है ना, इसका बड़ा मसला था मेरे साथ। वो हैदराबाद में जाकर फिर तीसरी कैसे हुई? अब तीसरी तो वही मसला आ गया, जैसे हज़रत ने फरमाया था कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, या तो मेरे से निकाह करो। कोई खातून थी जिन्होंने कहा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ? मुसलमान थोड़ी थी, कुछ मसाइल दरपेश आए, तो मैंने कहा भाई किसी से भी निकाह कर दो। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं? अच्छा, उसने खुद आपको पेशकश की कि आप? तो नहीं, उन्होंने कहा निकाह करवाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, कलमा पढ़ लिया। फिर कुछ मामला कुछ दर्ज हो गए थे, घर वालों ने कुछ से कुछ कहा, तो कहा कि मैं और घर तो वापिस जाऊँगी नहीं, तो कुछ मसाइल दरपेश आने की वजह से मिल आपके जो है, क्योंकि मैं तो निकाह करना है किसी से, आप क्यों नहीं कर रहे? ये बार बार टकराने से फिर वो बात ये तय पाई कि कर ही लिया जाए। बिल आखिर तय ये हुआ कि चलो मजबूरी में एक और काम। जो ख्वाब देखा था ना, हाँ। औरतें, वो जो औरतें भाग रही थी चाकू लेके, वो कहीं बीवियां तो नहीं थी? उनकी बीवियां थी। मुझे एक आदमी ने ख्वाब में बताया कि मैंने ख्वाब में देखा कि आपके घर के बाहर औरतें बुर्का पहन के डंडे लेके खड़ी हुई मारने। जब मैं 4 शादी में बहुत बयान कर रहा था, कह रहे थे जरा खवातीन से बच के रहा करो, पिट जाओगे जिसको। मैं भी अभी तक बस अल्लाह तवक्कुल पे। देखिए एक बात तो ये है, मैं सोशोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मैं सीधा समाजियात को पढ़ता हूँ, उलमा को पढ़ाता हूँ। दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले। हिंदुस्तान के कुछ खित्तों में नहीं है, वो एक अलग बात है, वो लोग ना समझ पाएँ। केरला में जाइए, आप उसको औरतों के तनासुब निकालिए आबादी का। अगर ये औरतों क्या एक मर्द दूसरा निकाह ना करे, एक और सारा उम्र ऐसे जिंदगी गुजारे, उसके घर वालों को क्या बीतती है उसका अंदाजा आप लगा। मेरे हज़रत मौलाना ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। अभी मौलाना फरमा रहे थे कि मौलाना करीम साहब कि बहुत सी गैर मुस्लिम औरतें इसलिए मुसलमान नहीं होती कि उनको पता है कि ठिकाना देने वाला कोई नहीं। तो फरमा रहे थे अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ताला के हवाले से कि उन्होंने भी लिखा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम औरत मुसलमान होना चाहती है
اور وہ یہ شرط لگا رہی ہے کہ مجھے کوئی ٹھکانہ دے، مجھ سے شادی کرے تو اس پر مسلمان پر پھر اس سے نکاح کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہیں غیر مسلم خواتین کے ساتھ جو اسلام چاہتی ہیں، لیکن کوئی انڈیا سے بہت ساری خواتین کے فون بھی آ چکے ہیں میرے پاس جو غیر مسلم کی مسلمان ہوئی ہیں، انہیں کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملا، کوئی فراڈ ہی مل گیا، اس سے زندگی عذاب بناتی ہیں. اب وہ نہ اپنے خاندان میں پیچھے جا سکتی ہیں اور نہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں، ایک لٹک گئی بیچاری زندگی بھر. حضرت یہ بھی ہے کہ میں آپ کو اس بات کی وجاہت مفتی صاحب آپ وضاحت کریں گے. کوئی عورت ایمان لا رہی ہے اور اس کو ہم ایمان لانے پہ راضی نہ، وہی کفر راضی نہ کفر ہوتا ہے نا، وہ ایمان لا رہی ہے کسی بھی ذریعے سے اور وہ آپ اس کا ایمان بجا رہے ہیں، 3 بیویاں پہلے ہیں، چوتھی آ رہی ہے، تو بھی آپ کو اس سے نکاح کر لینا چاہیے، ورنہ آپ اس کے کفر کے ذمہ دار رہیں گے. آپ ذرا یہ میری طرف کہہ کے بولیں، آپ ان کی بیویاں بھی سنیں گی ابھی وہ ناراض ہو میں جائیں آپ گی. کو پھر نہیں، ہر مسلمان کے لیے 3 بیویاں جس کی ہے میں بھی اس میں شامل ہوں. اب تو 2 بچے مجھے خطاب کرتے ہیں. سیٹ خالی ابھی آپ مجھے آپ بہت سخت تاکید سے کہیں گے. اگر کوئی عورت آپ کو آگے کہے کہ حضرت مفتی صاحب میں مسلمان نہیں تھی، اب میں مسلمان ہو جاؤں، اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو میں مسلمان رہوں گی، اسلام پہ پابند رہوں گی، تو آپ کو مجھ سے نکاح کر لینے کے پابند ہیں. نہیں تو مجھے بہت سخت گناہ ملے گا نا. بہت گناہ نہیں، جو اس کے کفر راضی رہیں گے تو کفر این کفر ہے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اب اگر میں نے ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان سے آپ خارج کے ایمان بھی خارج. اگر توبہ نہیں اعتراض نہیں کرنا پھر. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو خیر میں تھوڑی سی دل لگی کر رہا تھا آپ سے ماشاءاللہ، تو بہت خوشی ہوئی. ایک چھوٹا سا پیغام آپ خاص طور پر ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں. بھائی ہم ملیشیا میں اس وقت اکتوبر کا آخری عشرہ ہے اور 2019 ہے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے غیر مسلموں میں تبلیغ کے حوالے سے ایک ورک شاپ کا انعقاد کیا ہے. تو اس میں ہمیں بہت سے غیر مسلم بھی ملے جنہوں نے اسلام قبول کیا. ان میں کی بابری مسجد کے حادثے میں شریک تھے، لیکن پھر بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی. ابھی ان کی بڑی زبردست ہم نے کارگزاری سنی ہے. تو اختتامیہ طور پر بس آپ سے ایک چھوٹا سا کوئی پاکستانی مسلمانوں کے نام خاص طور پہ پیغام. میرے پاکستانی بھائی بہنوں، آپ کے یہاں پہ ایک بڑی تعداد غیر ایمان والوں کی ہے اور پاکستان چونکہ ذاتی واد سے بہت جوجھتا ہے، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کیونکہ میں آپ کے پرانے پنجاب کا حصے کا رہنے والا ہوں. ہریانہ پنجاب ہماچل ایک ہی ہوتا تھا، ایک حصہ پنجاب کا پاکستان میں چلا گیا، ایک حصہ ہندوستان میں رہ گیا. تو بھائی میں تو آپ سے پنجابیت کا بھی واسطہ دیتا ہوں اور ہندوستانیت پرانے ہونے کا بھی واسطہ دیتا ہوں. آپ سے میرا کا رشتہ ہے. اور ایک یہ کہ میرے بھائی بزرگوں، یہ جو لوگ غیر ایمان والے آپ کے یہاں بیٹھے ہیں، میں راجپوت ہوں کمیونٹی سے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب مجھے پاکستان بلاؤ گے، آپ کے یہاں جو جھاڑو لگانے والا آدمی ہے، جو موچی ہے یا جو بھی کام کرتا، اس کے یہاں کھانا پینا مفتی صاحب کے کہنا کرتا دعوت کی نیت سے جب بھی آپ جائیں گے اس کے لیے جائز ہے، چاہے اس کے گھر میں خنجر بھی پکتا ہو، بس کہ اس کے اثرات نہ ہوں برتنوں میں، آپ اس کے یہاں کھا پی سکتے ہیں. اس نے شراب نہ پی، اس کے اثرات نہ ہوں منہ پہ تو اس کا جھوٹا بھی کھا پی سکتے ہیں. آپ پاکستان کا ایک ایگزامپل ایسا بنی ہے کہ وہاں سب کے سب مسلمان ہیں. روز یہاں پر تو گمراہی پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ یہ ہوا، پاکستان میں ایسا ہو گیا. یہ جو کہانیاں دیکھیں، زبرن تو اسلام کسی کو داخل کری مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اگر زبرن باتیں آئی ہیں اس میں حقیقت کیا ہو تو اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کے چینل کے مادھیم سے. آپ ہر گھر میں ہر آدمی، مرد عورت سب پہ دعوت فرض ہے. جیسے ہم پہ نماز فرض ہے، ہر بالغ واقل مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ عورت عورتوں میں جا کے تبلیغ کرے، مرد مردوں کو تبلیغ کریں. جتنے بھی غیر ایمان والے پاکستان میں رہ رہے ہر ایک کو بڑے پیار محبت سے، دعوت اس کو کہیں گے جس کو پیار محبت سے دیا جائے. زبردستی کس کو دعوت نہیں کیا جیسے وہ دعوت ہو جائے گی، اللہ کی آپ پکڑ ہوگی. آپ پیار محبت سے ان کے واسطہ بنائیے، پہلے ان کے آنا جانا کیجیے، ان سے پیار محبت پھر بات تو اس کی شروع کیجیے. یہ آپ کا فرض ہے، پابندی ہے. نہیں کریں گے تو اللہ کے ایسا جواب دے ہوگی. اللہ نہیں تو آخرت میں یہ پوچھیں گے، وہ لوگ کہیں گے اللہ یہ میرے سے دودھ لیتا تھا، ہر کام میں ہمارے سے معاملات تھے، لیکن انہوں نے ہمیں اللہ تیرا تعارف تیرے نبی کا تعارف نہیں کرا، وہ آخرت میں ہمارا دامن نہ پکڑے. اس کے دفاع کے لیے اور ہندوستان کے نہیں پوری دنیا میں آپ کے نام کو جو بدنام کیا جائے اس کو بدنام کی دور صرف دعوت سے ہوگی. آپ دعوت دیجیے. مسجدیں کتنی بنائی ہوئی ہیں پھر؟ اچھا ماشاءاللہ انہوں نے پھر جو ہے نا جو بابری مسجد کے ساتھ تھوڑا جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے اس کا کفارہ بھی ادا کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کا کفارہ کیسے وہ آپ نے کیا جی، اس کی تلافی کیسے کی ہے؟
अल्लाह जो हरियाणा पंजाब में गैर आबाद मसाजिद थी कुछ जी। हमारे तोज़े में, असल में उस वक्त मैं जज्बे में था। जी कुछ लोग कहते हैं मस्जिद तोड़ के आया, तो फिर मैं जज्बे में ये कहा था इंशाल्लाह 100 मस्जिदें बनाऊंगा, माशाल्लाह माशाल्लाह लेकिन वो हकीकत पे आए तो टाइम लगा। जी। अल्लाह का शुक्र है 91 मस्जिदें क्या में, 91 मस्जिदें बना डाली हैं माशाल्लाह। और अल्लाह ने अल्लाह कबूल फरमाए जी। 9 मस्जिद पूरी इंशाल्लाह हो जाएंगी। अल्लाह आपसे 100 मस्जिदें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर हकीकी ईमान रखता है ना, अल्लाह और आखिरत पर, वो लोग हैं जो मस्जिदें बनाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। और भी बहुत से गैर मुस्लिम हजरात थे जो जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके भी इंशाल्लाह इस सफ़र में हम इंटरव्यू जो है वो नशर करते रहेंगे। और जो भी है वर्कशॉप से मुताल्लिक जो भी बातें होती रहेंगी, हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, बहुत सारे वाक़यात हैं साहब, सबकी रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती, तो इंशाल्लाह हम लोगों को बताते रहेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।